दो तरह से चलती है। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड मैनिपुलेशन। जो लोग वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते बिकॉज दे आर वीक, तो वो मैनिपुलेट करते हैं to get their work done, but there are going to be some deadliest manipulation technique that will use. You have no idea how bad it could be. तो first जो है that is triangulation. तो इसमें क्या होता है, when you are fighting with someone who is narcissistic or really manipulative, they are going to involve or invite another person in your fight to support themselves, to talk something on their behalf and obviously against you. तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम किसी के साथ फाइट में हो एंड मे बी दैट पर्सन इज नार्सिसिस्टिक, तो वो किसी और को इनवाइट कर लेते हैं, किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं तुम्हारे फाइट के अंदर जो उससे सपोर्ट करे। देख, हमारे बीच में ये सब कुछ हुआ है, अब ना तू बता मुझे कि ये मेरा फॉल्ट है कि उसका फॉल्ट है। तू मेरा फ्रेंड है ना, तो तू बता मुझे ये उसका फॉल्ट है मेरा फॉल्ट है, ये बता मुझे। हमारे फाइट के बारे में मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, मैंने सबके साथ डिस्कस किया, कॉलीग के साथ, फैमिली के साथ, एंड सबने यही मुझे सजेशन दिया कि ये तुम्हारी गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। ओ, तो तू बोल रही है कि दिस इज माय फॉल्ट, ऑल दिस हैपेंड बिकॉज़ ऑफ मी। तू मुझे कॉल करने दे, एक बार कॉल करने दे मुझे। सेकेंड जो है दैट इज साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। सो इसमें क्या होता है दैट नार्सिसिस्ट इज गोइंग टू प्रोजेक्ट देयर ओन बिहेवियर और ओन फ्लॉज ऑन यू. They are going to blame you for their action. Not only that, they are going to project their own fault, own flaws on you. This is not my fault, it's your fault. I'm not jealous, you jealous. I am not insecure. What are you even saying? You are insecure. I never cheated on you. You cheated on me and now you are saying me that I cheated on you. What's rubbish? मैंने कोई चोरी नहीं किया. It is you that steal everyone's money. Third जो manipulation technique है that is deadliest. That is called smear campaign. Smear campaign. तो इसमें क्या होता है? It is kind of like an extended version of triangulation that I have already said. तो इसमें क्या होता है कि that narcissist is going to say bad stuff about you in the society with everyone. They are going to be really bad mouth about you and they are going to say stuff that you never done in your entire life. इसमें क्या होता है, अदर्स जो लोग हैं, अदर्स जो सोसाइटी है, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप है, वो सब कुछ तुमसे छीन लेना चाहते हैं. They just want everything. They just want to snatch everything from you, your friends group, your society, your fame, everything. And they are going to build a community who are totally against you. Yes. रितिका है ना, वो बहुत ही बदतमीज लड़की है एंड वो ना किसी के साथ भी कुछ भी बोल देते हैं. एंड उस दिन तो मैंने उसे वो लड़की के घर से भी निकलते हुए देखा. रितिका है ना, वो तो इतना बदतमीज है कि वो ना ये सब कुछ करती है. तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे थे उस दिन, तुम्हारे बारे में बोल रहे थे कि तुम वो लड़की के घर से निकल रहे थे एंड उसने ये भी बताया कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहनती हो. ये कोई बात हुई? मैंने तो कह दिया कि वो उसका मर्जी, तुम्हारा मर्जी है ना. रितिका है ना, वो मेरे लड़की के साथ में थे, ठीक है, एंड उसका जो कैरेक्टर है वो इतना गलत है. एंड उस दिन तो मुझे सुनाई दिया कि वो क्लास की जो अदर्स लड़की है, अदर्स गर्ल्स है, उसके बैग में से पैसा चोरी करते हैं. बताओ, ये कोई बात हुई? एंड फोर्थ जो मैनिपुलेशन टेक्निक है वो है कि लव बॉम्बिंग, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है. वो है कि it is normally happens in love relationship or romantic relationship when you are in a relationship with a narcissistic person. तो क्या होता है कि they are going to be so good, so they are going to be the best version of themselves. They are going to show you that they could be the one in your life. They are going to build you or take you to your favorite trip. They are going to do the things that you want them to do. They are going to mirror you completely. And when you are completely in that relationship, they know that you fail for their trap or their behavior. Basically, you fell in love with that person. They are going to be totally off and they are going to discard you. This is love bombing. बेबी, पहले 6 months मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ. मैं तुम्हें हर जगह ले जाऊंगा, हर रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, अच्छे से बिहेव करूंगा, हमेशा गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक्स्ट सब कुछ करूंगा एंड तुम्हें अच्छी गिफ्ट दूंगा. बिल्कुल भी पॉजिटिव बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा. तुम्हें बहुत सारा स्पेस दूंगा एंड बहुत सारा प्यार दूंगा. एंड जब भी तुम मेरे प्यार में गिर चुके होंगे, यू विल फॉल इन लव इवेंचुअली. तो तब मैं तुम्हें डिस्कर्ड कर दूंगा. ठीक है बेबी, डील? फिफ्थ जो मैनिपुलेशन टेक्निक है दैट इज मूविंग द गोल पोस्ट एंड इट इज extremely toxic and it is mainly applied in
professional field, and when you want a divorce from someone, this is the manipulation technique that they use, that is moving the goalpost. तो इसमें क्या होता है, you want to end the discussion or the argument with a narcissistic person. You want a simple divorce, or you want this fight to be end, but now they are putting or they are keeping a lot of criteria that you have to match this criteria so that this fight could be end. And now you feel like ठीक है, मान लेते हैं वो जो छोटा मोटा और जो कुछ भी क्राइटेरिया रखे हैं वो मान लेते हैं. एंड व्हेन यू मीट ऑल दोस क्राइटेरिया, दे आर गोइंग टू बिल्ड अनदर क्राइटेरिया. दे आर गोइंग टू बी, मुझे अब ये भी चाहिए, मुझे अब वो भी चाहिए. If you can take the first position in this exam, तो मैंने तुम्हें एक आईफोन दिला दूंगी, ठीक है? ये एग्जाम तो बहुत इजी था. ये एग्जाम में क्या है, तुम नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे करो तो तब मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा, ठीक है? ओके, मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन. नाउ आई एम सेइंग दैट यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड आई हैव माय चाइल्ड टू मेंटेन, तो मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा लगेंगे, तो अगर मुझे वो पैसा मिल जाए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, आई प्रॉमिस. इफ यू डू ऑल दिस वर्क इन 1 month, अगर ये जो टारगेट है ये फुलफिल हो जाए तो यू आर गोइंग टू गेट अ प्रमोशन, आई एश्योर यू. इतना छोटा काम तो हर एम्प्लॉय करते हैं एंड इतना छोटा टारगेट तो हर कोई पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब मैं सबको प्रमोशन दे दूं. तो तुम ये सब अदर्स कम करो एंड ये जो टारगेट है वो फुलफिल करो, तो तब मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगी, आई एश्योर यू. अगेन 6 जो है that is future faking, and this is really toxic and I have talked about future faking a lot in my video. तो इसमें क्या होता है, they are going to give you an exciting image of an exciting future if you are going to be with them. If you are going to be with me, then our future is going to be so bright. We are going to live in a really big mansion, and we are going to have a beautiful child and a beautiful house and swimming pools, and we are going to travel a lot, and we are going to have a lot of dogs and cats. This is going to be really beautiful. I have waited for 5 years. Where is that future? Please wait for 5 years more, and we are going to build a beautiful house and beautiful. We are going to travel a lot, and we are going to have child and mansion and swimming pool, and have dogs and all those stuff. If you invest in my company right now, 10 साल बाद तुम देखना कि ये एक मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर डॉलर की कंपनी बनने वाला है. एंड इफ यू इन्वेस्ट राइट नाउ इन माय कंपनी, तो तुम देखना एक दिन तुम बिलियनियर बन जाओगे, आई प्रॉमिस, आई एश्योर यू. तो इसके लिए तुम्हें अब थोड़ा सा 1 लाख इन्वेस्ट करना है एंड यू आर गोइंग टू बी रियली रिच someday, trust me, and that someday is never coming. So ये था आज का वीडियो. I hope you like this video. I hope ये वीडियो किसी को हेल्प करे, and I know अगर कोई ये वीडियो देखने वाले हैं ना, तो it is definitely going to help that person. I know that because they are, मैं ये 1000% कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ, 1000% from the experience that I have gained in my life, that not a single person in this entire planet haven't faced this narcissistic abuse or narcissistic manipulation in their entire life. एक बार ना एक बार तो सब ने ही फेस की है and सफर की है, और नहीं, if you haven't suffered yet, you have to in future. So better be aware of these situations. Okay, so love you, I love you. Mwah, mwah, mwah.